Honorable Speaker, sir, I would like to regret and place my regrets on the House that no demand booklets were placed during the budget speech, after the budget speech of the Finance Minister and incidentally his Honorable CM. No booklets were published and no booklets were placed on the House. I went to your office, I requested for the demand booklets and only 4 booklets have been provided. The other booklets are still to come. It is a practice of the House that all these booklets of 29 departments are distributed in advance, but they have not been distributed. Number one. Number two, sir, there is no precedence anywhere where 4 demands are voted in one go. Each and every demand is taken individually and it is voted for. It is for the first time you are such a senior member of the House that these 4 demands are being placed in one go. Sir, now I will come to the basic issue. Sir, if I come to the health and medical education, I would like to remind the Minister that after pursuing and going through the details of the medical allocations, the Jammu Directorate has been given 1536 crores, 1536 crores, whereas Kashmir has been allocated 2402 crores, 866 crores much has been allotted against a sum of 4000 crores, and rest 4800 crores उसमें सर आई डू नॉट नो जे कमिश्नर सेक्रेटरी को पैसा दिया गया है. It is against the budgetary manual, it is against the budgetary practice because there are no specific things which he has pointed out. There is a specific demand. It has been placed in the hands of the commissioner secretary and incidentally it will go to the minister. Emergent money is only to a tune of 10 to 20% of the budget, but not 60% budget is an untied budget. It has not been specified where it will go and to what thing I am voting for. मेरे को क्या पता है कि ये पैसा कहाँ लग रहा है और मैं किसको वोट करूंगा, ये हाउस किसको वोट करेगा. जब आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये पैसा कहाँ जाना है तो हम वोट किसको करेंगे. हम कमिश्नर सेक्रेटरी को वोट नहीं कर रहे हैं. वी आर वोटिंग फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, वी आर वोटिंग फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, वी आर वोटिंग फॉर ए स्पेसिफिक थिंग. द हाउस नीड्स टू नो why such a big amount has been placed in the hands of and why Jammu has been discriminated. Number one. Number two, I will come to a discrimination part. This is regarding school education. Sir, this school education, Jammu has been allocated 4,474 crores. Kashmir has been granted 5,439 crores. 1,000 crore rupee more has been allocated to Kashmir. और इसमें यार एक चुप रहो यार. देखिए ऐसा है, अब मैं एक्चुअल्स पे जाऊंगा. जो 23-24 के एक्चुअल से जो कमिश्नर सेक्रेटरी सुन रहे होंगे, इसमें 89 करोड़ जो है एक्चुअल से रिड्यूस किया गया जम्मू का बजट और 508 करोड़ रुपया कश्मीर का बजट एक्चुअल से इंक्रीज किया गया. व्हाट्स द रीजन? क्या हम टैक्स नहीं दे रहे? क्या हम इंटाइटल्ड नहीं है एजुकेशन के लिए? हेल्थ में भी हेरा फेरी, एजुकेशन में भी हेरा फेरी. फिर आप आइए हायर एजुकेशन पे. जम्मू यूनिवर्सिटी को यू हैव ग्रांटेड 260 करोड़, कश्मीर यूनिवर्सिटी को ग्रांट किया 343 करोड़. बताइए क्यों है डिस्क्रिमिनेशन? इसलिए डिस्क्रिमिनेशन आई. मैं आपसे पूछ रहा हूं. और फिर आपने 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों को ग्रांट दिया. व्हाट इज द क्राइटेरिया? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रांट टू दोस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस? अगर मेरे जहां पर भी 3 कॉलेज चल रहे हैं, वो भी मैं उनको बोलूंगा भाई 100 बच्चों को फ्री पढ़ाओ, उनको भी ग्रांट दीजिए. प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को किस बेसिस पे ये ग्रांट दिया जा रहा है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं. और सर, हर जगह पर अनस्पेसिफाइड अमाउंट प्लेस किए गए कमिश्नर के हाथ में. क्या ये हाउस कोई मूर्खों का हाउस बनाया गया है कि हम वोट करेंगे? हमारे को पता नहीं है कहां पैसा जाएगा, किस जगह पे जाएगा और किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा. सर, दिस इज अ ट्रेजेडी that the demands are taken very lightly by all the honorable levels. But I am a person,
In the last assembly, I spoke about this demand in detail. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं किस चीज को वोट करने जा रहा हूं। जब आप कमिश्नर सेक्रेटरी को प्लेस कर रहे हैं 800 करोड़ रुपया, आपको बताता हूं 816 करोड़ रुपया डिग्री कॉलेज को दिया इन्होंने। कितने डिग्री कॉलेज हैं? 100 से ऊपर है। एक कॉलेज को कितना आएगा? 8 करोड़ से कम गवर्नमेंट के कॉलेज को। और प्राइवेट को कितना दे रहे हैं? 36 करोड़, 44 करोड़, 24 करोड़, 28 करोड़। सर ये कोई इधर में कोई ट्रांसपेरेंसी से काम चलेगा, मनमानी से काम नहीं चलेगा। आपकी क्या क्राइटेरिया है कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ग्रांट नहीं दे रहे हैं? उसका क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया लेड डाउन फॉर द सेम? सर आयरनी इज के दिस बजट स्मैक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स जम्मू। मैं तभी तो बोल रहा हूं, आपने 501 करोड़ रुपया कश्मीर का इंक्रीज कर दिया एजुकेशन में, आगे ही बड़ा डिफरेंस था। फिर 89 करोड़ जम्मू का रिड्यूस कर दिया। We never wanted this type of discrimination to happen in this assembly, and especially from a CM who is a very positive person. I know this budget has been prepared by the Babus and Director General Ittu. He is sitting over there for the last so many years. वो फिगर्स को टिंकर करता है और भेज देता है, और यहाँ पर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी कुछ भी चेक नहीं करते। जो फिगर्स आती है उनको कैसे अपलोड करके दे दिया जाता है। सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाउस से पूछ रहा हूं। क्या जम्मू टैक्स कम दे रहा है? सारा शराब का एक्साइज और वैट जम्मू दे रहा है। वहां पर लीवर अस्पताल कोई काम नहीं किया। मेरे उधमपुर में हॉस्पिटल में रिकॉर्ड निकालिए, 16 डेथ 2 महीने में हुई है शराब पीने से, अल्कोहलिक लीवर से। क्या हमने उसके लिए कोई CSR क्रिएट किया? उसके लिए कोई हॉस्पिटल क्रिएट किए? नहीं किए। सर नाउ आई विल कम टू certain basic issues of my constituencies. I will like to know from madam, 3 महीने से मेरी पोस्ट का लिया प्रिंसिपल की, अकेडमी से ही चल रहा है, 18 का कॉलेज बना है, 8 पोस्ट भरी हैं 114 पोस्ट के केस पे, और कंट्रेक्चुअल लेक्चरर सब छोड़ के चले गए क्योंकि उनको माता वैष्णो देवी में ज्यादा सैलरी मिल गई। हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को तो तबाह किया, उसमें वो कंसल्टेंट नहीं बचे। और जब बारी आई मेडिकल कॉलेज की, उसके अंदर में आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और मेडिकल कॉलेज को वहां लोकेट किया गया जहां पर सीनियर रेजिडेंट को आने के लिए, जब कंसल्टेंट को आने के लिए 14 किलोमीटर का सफर ट्रेवल करना होगा, तब तक पेशेंट का राम नाम सत हो गया होगा। जे कभी भी जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 220 करोड़ जमीन दी थी, ये कौन ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अंदर में उसको डेवलप करने की कोशिश की? और MCI की गाइडलाइन है कि 48% ग्रीन लैंड चाहिए, पार्किंग कोई नहीं, 5 मंजिल बिल्डिंग बना दी, बेसमेंट में पार्किंग नहीं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग नहीं, कोई वहां पर मूव करने के लिए। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि ITI को टेक ओवर कर लीजिए, 14 करोड़ जमीन है, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके काम आ सकता है। सर हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर खाली पड़े हैं, बलदेव राज जी के टाइम पे खुले थे, बिल्डिंगें तबाह हो गई, वो अभी तक चले नहीं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा पार्ट बन गई। सर मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत बुरी हालत है मेडिकल में। अगर आप मेडिकल और एजुकेशन को ठीक करते हैं तो ये स्टेट प्रोग्रेस करेगी, अदरवाइज दिस स्टेट इज डूम्ड टू बी इन अ स्टेट वेयर इट इज। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने ये हायर एजुकेशन की बात की है। हायर एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया? व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन वी हैव मेड इन द स्किल डेवलपमेंट? आज अगर सैमसंग में नौकरी चाहिए, वो हमारे ITI से निकलकर उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ही हैज टू बी ट्रेन्ड इन द फैक्ट्री फॉर 2 years, ओनली देन ही विल गेट ए जॉब इन द मार्केट। सर हमारे को पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। हम खाली एकेडमिक एजुकेशन से चल रहे हैं, हम वोकेशनल का नाम लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट का नाम लेते हैं। वी कंपेयर आवरसेल्फ विद चाइना। चाइना ने जो वैल्यू एडिशन स्किल में की, दैट्स व्हाई ही हैज गॉट ए कटिंग एज टेक्नोलॉजी ओवर द एंटायर वर्ल्ड। देयर लेबर इज नॉट ओनली चीप बट देयर लेबर इज बेस्ट, एंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट जहां पर हम 10 पैसे का काम करते हैं वो 40 पैसे का काम करते हैं। इसलिए हमारे को आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा।
8 minutes only. सर आपने 18 मिनट दिए मुबारक गुल साहब को, मैं अपनी पार्टी के तरफ से बोल रहा हूँ, तो सर कुछ तो हमारे को भी बोलने दीजिए। Only 8 minutes. सर मेरे यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ था मोंगरी में, बाद में चेंज हो गया कैंथकली में, 2 तहसीलों की लड़ाई लगा दी, आज तक वो कॉलेज बना नहीं है। हमने कहा भाई पंचायती को दे दो, मोंगरी को दे दो, लड़ाई खत्म करो, आज तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ, आज तक उसको कोई डिसीजन हुआ। आज मेरे इलाके में 1250 टीचर शॉर्टेज में है, मैडम सुन रही हैं, 1250 टीचर शॉर्टेज में है, और क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन। एक को इधर से उठाया, क्विक फिक्स अरेंजमेंट, इधर से उठाया, इधर में शॉर्ट पड़ता है, उधर में चला गया। सर टीचर्स को, जो एक रेवरे तालीम के टीचर्स को की पोस्टों को डाला गया जनरल लाइन टीचर में, और जनरल लाइन के टीचर की पोस्ट को फ्रीज किया गया, उस पॉलिसी को अबॉलिश कीजिए, क्योंकि आपने और आपके प्रेडिसेसर ने बहुत बड़ी गलती की है। जो रमजान के अंदर में कंट्रेक्चुअल टीचर लगने थे, जिसको 28,000 रुपये एक टीचर लगना था, 40,000 में उसका हेडमास्टर लगना था, आपने जनरल लाइन टीचर को उठाकर कंट्रेक्चुअल की लिस्ट में डाला, आपके सेंटर के पैसे भी चले गए और आपको फायदा भी कुछ नहीं हुआ। ये आपकी गवर्नमेंट ने किया है। रमजान में जो घोटाला हुआ है इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। आपने कैसे टीचर को लगा दिया? आपको तो गवर्नमेंट ने कहा 28,000 रुपये कंट्रैक्ट पे टीचर लगाना है, वो टीचर तो लगे नहीं। और लोकल्स में क्या हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर लोकल टीचर वहां से लगता 28,000 रुपये, वो वहां सब करता। आज मेरा पंचायती मोंगरी पूरा खाली है, आज ये बलवंत जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी चिरानी खाली है, आज रामनगर खाली है, आज हम कहां की बात कर रहे हैं, या कुटुबा पूरा प्रॉविंस खाली है। सर इसलिए जो फ्रीज लगाया है आपने एजुकेशन के टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए, मैडम हाथ जोड़ के विनती करता हूं उसको खोलिए। पिछले 9 साल से बच्चे बेकार होकर पीएचडी करके एमएससी क्लास फर्स्ट में पास करके घूम रहे हैं, उनका कोई जॉब नहीं है। क्या उनके बूढ़े होने का इंतजार कर रहे हैं? पॉलिसी को रिवाइज कीजिए सर, अगर आप टाइम नहीं देंगे मैं बैठ जाऊंगा। नहीं सर, ऐसा है सर, मेरी एक थोड़ी सी सबमिशन है। Why did you allow 17 minutes to श्री ऑनरेबल मेंबर मार्क? सर चलिए, मेरे बाकी साथियों बोलूंगा मैं लास्ट में। ऑनरेबल सीएम साहब जहां बैठे हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा। ये जो injustice has been meted out to the province of Jammu, how you are going to set the things right? Because this is in perpetuity. Every government comes, they inflict some bounds on the psyche of Jammu, and Jammu को हमेशा पीछे किया जाता है। मैंने जो आपको फिगर्स दी हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मेरी फिगर्स गलत हो तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा। I am challenging you all these figures because I have done my spade work. So it is my humble request to the Honorable CM to call his DG budget, Director General budget, and ask him how he has placed the figures. Sir, thank you very much.